Hello everyone and welcome you all on my channel Sharp Physics. So in this video I'm going to talk about potential energy and the potential. What is the difference between these two? As the name is almost similar, but there is a difference between these two quantities. So today we are going to talk about these difference. So first of all, what is energy? As we know that energy is something by which we are able to do the work. ठीक है, अगर एनर्जी नहीं होगी so we can't do any of the work. For example, if you want to walk on road, or if you want to write, if you want to uh, anything, if you want to do anything, for that you need the energy. So what you can say that change in energy is amount of work done. That is when suppose when you do the work, so what happen when you do the work? So some of your energy is invested, so it means when you do the work, so your energy is changed. That is, your energy is converted to the work. जो energy हो रही है वो work में convert हो रही है. That is, so energy is a type of work, or you can say that work done is a type of एनर्जी. ठीक है, तो ये हम एनर्जी से समझ सकते हैं कि एनर्जी क्या है. ठीक है, सो हियर वी हैव अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी. एज यू नो दैट वी हैव मैकेनिकल एनर्जी, heat energy, gravitational energy, kinetic energy, potential energy, and many other form. And one thing we always have studied in our previous classes, that energy can neither be created nor be destroyed, but it is always converted from one form to the another. ठीक है, so what it means, that the total energy of the universe is always constant. ठीक है, हम एनर्जी कहीं से बना नहीं सकते हैं, ये हमेशा यूनिवर्स में कांस्टेंट रहेगी. बस हम क्या कर रहे हैं, एक फॉर्म की एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ हीट इंजन. ठीक है, हीट इंजन, तो हीट इंजन में क्या होता है, हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड टू द मैकेनिकल एनर्जी. जैसे अब तो हीट इंजन काफी कम यूज होते थे, लेकिन पहले यूज होते थे. तो देयर इज जस्ट अ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी. सो पोटेंशियल एनर्जी भी एक टाइप की एनर्जी ही है. और पोटेंशियल एनर्जी कैसी एनर्जी है, द एनर्जी विच इज एसोसिएट विद द पोजिशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, दिस इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी. सो हेयर I have considered the 2-3 example. Let us go with one by one. So first is so let us consider, here we have a earth surface, and हमने एक यहाँ earth surface के ऊपर एक mass रखा है which is at a height h above from the earth surface. So the energy associate, potential energy associate with this type of system is known as, is डिफाइन एज mgh. ठीक है, सो ये पोटेंशियल एनर्जी होती है हमारी. ठीक है, सो पोटेंशियल एनर्जी हमने अभी भी पढ़ा था कि एक टाइप का वर्क डन है. ठीक है, और वर्क डन का हम फॉर्मूला जानते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर, वेयर एफ इज द फोर्स एंड डी आर इज द डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू दिस फोर्स. सो यहाँ पे ग्रेविटी की वजह से कितनी फोर्स लगती है, ग्रेविटी जो इसमें फोर्स एग्जर्ट कर रही है वो कितनी है, होती है mg. ठीक है, सो फोर्स कितनी है, यहाँ पे फोर्स कितनी है mg, और डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है h. ठीक है, सो टोटल वर्क डन कितना होगा mgh. सो ये हमने निकाल दिया. ठीक है, सो ये वर्क डन, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी, और इसके पास इतनी पोटेंशियल एनर्जी है, इतनी एनर्जी है, उस एनर्जी की वजह से ये फॉल हो जाएगा. जो मास m है ये अर्थ सरफेस पे आ जाएगा. जैसे कि हम देखते भी है, जब भी हम कुछ चीज थ्रो करते हैं, फॉर एग्जांपल वी थ्रो अ स्टोन, ठीक है, विद द वेलोसिटी v, सो आफ्टर सम टाइम इट रिटर्न टू द ग्राउंड. सो व्हाई इट इज रिटर्निंग, बिकॉज ऑफ अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट पार्टिकल. ठीक है, हेयर इट हैज अ, सो व्हाट विल हैपन, आई विल draw the complete scenario. Let us suppose here we have a ball, and we throw this ball in a upward direction with the velocity v. ठीक है, so here at some point
Now here, from here the kinetic energy is going to be decreased, and here at the point we have zero kinetic energy. We have zero kinetic energy, and all this kinetic energy is converted to the potential energy. So here on at this point we have a potential energy. यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगी तो उस पोटेंशियल एनर्जी की वजह से ये जो ऑब्जेक्ट, ये इस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, यहाँ पे। सो उस पोटेंशियल एनर्जी की वजह से क्या हो जाएगा, ये फिर से फोर्स लगेगी जो कि वो उसको फॉल डाउन करवा देगी, और वो पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे काइनेटिक में कन्वर्ट होती जाएगी, ठीक है। सो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा पोजीशन के साथ एसोसिएट होगी। अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंचा है, ठीक है, सो इट मीन्स आपके पास कम पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ है तो कम है, यहाँ है तो इसके पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं कि एग्जाम्पल ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम, ठीक है। सो उसके साथ जो स्प्रिंग मास सिस्टम ये हमने बनाया, लेट अस कंसीडर दैट दिस इज अ मास m, ब्लॉक ऑफ मास m, एंड लेट अस सपोज k इज द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ दिस स्प्रिंग, ठीक है। सो हमें पता है कि स्प्रिंग की वजह से फोर्स कितनी होती है, F इज इक्वल टू माइनस ऑफ kx, where x is what, x is the displacement of this spring from here to here, ठीक है, x is the displacement in this spring, ठीक है, and so this is the force, ठीक है। Now what is the potential energy? Again we can write that potential energy is equal to the work done, and which is equal to integration of kx dx, because we know that work done is equal to f dot dx, ठीक है, integration sign is also there, ठीक है, with negative sign. So after integrating you will get work done or potential energy is equal to half kx square. So here the x is also there in potential energy, ठीक है। So what it means, as you change the position your potential energy will get changed, ठीक है। So potential energy is generally associated with the position of that object. Now we are going to talk in case of a electrostatic, and here we are going in detail of this example कि इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में क्या हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में ही हम पोटेंशियल निकालते हैं। तो यहाँ हम समझेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल में क्या डिफरेंस है, ठीक है। सो लेट अस सपोज दिस इज अ चार्ज क्यू, ठीक है, चार्ज क्यू है, और हमें पता है कि अगर कोई भी चार्ज होता है सो देयर इज ऑलवेज अ इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएट विद दिस चार्ज पार्टिकल, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तभी वो किसी और चार्ज पे, टेस्ट चार्ज पे फोर्स अप्लाई कर पाएगा, आइदर इट रिपेल और आइदर इट अट्रैक्ट, ठीक है, डिपेंड अपॉन द साइन ऑफ अ चार्ज, ठीक है। सो बेसिकली ये इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन दिस चार्ज, or you can say potential energy stored in this charge, ठीक है। सो जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है इस चार्ज में, वही इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और उसी एनर्जी की वजह से वो किसी दूसरे टेस्ट चार्ज पे फोर्स अप्लाई कर पाता है, ठीक है। अगर इसके पास एनर्जी स्टोर नहीं होगी, इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, मतलब बेसिकली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पोटेंशियल एनर्जी की ही फॉर्म है, ठीक है। अगर इसके पास एनर्जी होगी तभी तो ये किसी और पे फोर्स अप्लाई कर पाएगा। लेट अस, तो आप ऐसे भी देख सकते हो, जब आपके पास कुछ एनर्जी होगी तभी तो आप कुछ काम कर पाओगे, अदरवाइज यू आर नॉट एबल टू डू एनी वर्क, ठीक है। तो जब पोटेंशियल एनर्जी होगी तभी वो फोर्स लगा पाएगा, और फोर्स कब लगती है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड ऑन दिस चार्ज, ठीक है। सो यहाँ पे इस चार्ज की कुछ एनर्जी है, ठीक है, इस चार्ज की कुछ एनर्जी है, एंड इट इज रिप्रेजेंटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, सो ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ क्या हो रहा है, ये क्यू नॉट जो है हमारा, लेट अस सपोज दिस इज अ टेस्ट चार्ज, सो ये टेस्ट चार्ज है, सो ये टेस्ट चार्ज पे कुछ फोर्स अप्लाई कर रहा है। सो लेट अस सपोज व्हाट वी आर डूइंग, लेट अस सपोज
we will take this charge and try to force this charge toward this प्लस क्यू नॉट चार्ज, ठीक है। इस चार्ज की तरफ हम इसको पुश करें, इसलिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी ताकि ये जो हमारा क्यू नॉट चार्ज है ये प्लस क्यू चार्ज तक पहुंचे, ठीक है। सो हम क्या कर रहे हैं, इसको इस पोजीशन से यहाँ इस पोजीशन तक लेके आ रहे हैं अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। सो ये जो हम डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, ठीक है, फोर्स लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, दिस विल बी द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस टेस्ट चार्ज। इसकी यहाँ पे कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी, ठीक है, जब हमने इस फोर्स अप्लाई की और उसको यहाँ से यहाँ तक लेके आए, ठीक है, डिस्प्लेस किया टेस्ट चार्ज को यहाँ से यहाँ तक, तो ये जो हमने एनर्जी लगाई ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। सो पोटेंशियल एनर्जी इज बेसिकली एसोसिएट विद द सिस्टम। सो ये जो उसकी एनर्जी होगी, एक्सटर्नल वर्क किया, वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगी, ठीक है। सो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। अब इसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है। सो लेट अस कंसीडर अ टू चार्ज पार्टिकल, ठीक है। सो टू चार्ज पार्टिकल ऑफ सेम साइन, यहाँ पे हमने दो केसेस लिए, तो सबसे पहले ये सेम साइन के चार्ज पार्टिकल है, सेम साइन है, तो इसके बीच में क्या होगा, इसके बीच में देयर विल ऑलवेज बी अ रिपल्शन, ठीक है। हमेशा ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है, रिपेल कर रहे हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अब लेट अस सपोज कि हमने यहाँ से कुछ फोर्स लगाई, ठीक है, इस चार्ज पे हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं और उस फोर्स की वजह से ये चार्ज अपनी पोजीशन चेंज करके आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है, ये यहाँ पहुंच गया, ठीक है, अब कुछ टाइम बाद यहाँ पहुंच गया। तो जैसे जैसे ये अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, आगे जा रहा है, तो हमको और ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। अब लेट अस सपोज ये यहाँ आ गया हमारा चार्ज, तो यहाँ पे इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो और भी कम हो गया, इसकी वजह से रिपल्शन और भी बढ़ गई। तो उस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए हमें और ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, ठीक है। और जो फोर्स लगानी पड़ेगी इट मीन्स हम कुछ वर्क डन कर रहे हैं, हम कुछ वर्क कर रहे हैं, और जो वो हम वर्क करेंगे वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करेगा। और जब यहाँ पे हमारा एट लास्ट जहां भी हम रखना चाहते हैं उस चार्ज को रखेंगे, तो जो भी हमने वर्क डन किया वो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, ठीक है। Q1 एंड Q2 जो सिस्टम ऑफ चार्जेस है उसके तो जो वर्क डन होगा वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही हम इस चार्ज को एक्सटर्नल फोर्स लगाना बंद करेंगे तो वो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी जो होगी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, और वो बहुत तेजी से इस तरफ को रिपेल करेगा, ठीक है, बहुत तेजी से इस तरफ हो जाएगा, ठीक है। सो ये क्या किया बेसिकली, यहाँ मैं क्या समझाना चाह रही हूँ कि जितना ज्यादा हम वर्क डन करते जाएंगे वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होता जाएगा। और व्हाट इज बेसिकली द पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन स्टोर इन दिस सिस्टम, ठीक है। सो ये एक केस हो गया। अब दूसरे केस हम पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल है ऑपोजिट साइन के, तो क्या होता है, ठीक है। अगर हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल ऑपोजिट साइन के हैं तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे हमारा जो होगा ये खुद इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और जैसे जैसे ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो कम होता जा रहा है, तो फिर इसकी जो वेलोसिटी होगी वो इंक्रीज होती जाएगी। वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है, इट मीन्स पहले इसके पास पोटेंशियल था और जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो मैक्सिमम थी, जो स्टार्टिंग की कंडीशन थी, पोटेंशियल एनर्जी थी मैक्सिमम थी। अब जैसे जैसे ये इसके क्लोज आता जाता है वेलोसिटी बढ़ती जाती है, क्योंकि ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है। जैसे जैसे अट्रैक्ट करेगा, जैसे जैसे पास आ रहा है डिस्टेंस कम होता जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ज्यादा बढ़ रही है, तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्यों, क्योंकि हमारी वेलोसिटी बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। सो इससे हम क्या समझ सकते हैं कि यहाँ हम कोई एक्सटर्नल वर्क नहीं हो रहा है, ठीक है। एक्सटर्नल वर्क जो है वो क्या है, जीरो है, हम कोई वर्क नहीं कर रहे बाहर से, ठीक है। ये खुद
इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो खुद अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी पहले से स्टोर थी वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। सो ये दो हमने पोटेंशियल एनर्जी के केसेस समझे, ठीक है। अब हम समझते हैं कि व्हाट इज पोटेंशियल, ठीक है। सो पोटेंशियल इज बेसिकली अ प्रॉपर्टी ऑफ दैट पॉइंट। ये एक पॉइंट की प्रॉपर्टी है। और पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल इज डिफाइंड एज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास एक रॉड है, ठीक है, और इस रॉड पे हमने दो चार्ज पार्टिकल यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल है प्लस क्यू, ठीक है, और यहाँ पे एक चार्ज है टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, ठीक है। और जो इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी है विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट क्यू वो यू ए है, और इस पॉइंट की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो यू बी है, ठीक है। सो इस टेस्ट चार्ज को जब हम यू ए से यू बी तक ले जा रहे हैं, उस टाइम पे जो चेंज हो रहा है, ठीक है, वो क्या बोलेंगे, वो एज अ पोटेंशियल स्टोर हो जाएगा, उसको हम पोटेंशियल बोलेंगे। दैट इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज। जब हम किसी टेस्ट चार्ज को या फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम व्हेन अ टेस्ट चार्ज इज मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर, ठीक है। व्हेन अ टेस्ट चार्ज जो मूव कर रहा है एक पॉइंट से अनदर पॉइंट को, या फिर उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए, जब हम टेस्ट चार्ज को ले जा रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, पोटेंशियल। और ये पॉइंट की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। एक और तरह से हम पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस समझ सकते हैं। बेसिकली जो फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का वो होता है के क्यू नॉट बाय आर, और जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वो होता है के कैपिटल क्यू बाय आर, ठीक है। अब हम एक और तरह से पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस को समझ सकते हैं कि जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये कोई चार्ज क्यू है जिसकी की इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज है, ठीक है। सो इस टेस्ट चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए या इसकी पोजीशन चेंज करने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा वो होगा हमारा पोटेंशियल के क्यू नॉट बाय आर, वेयर आर इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू, ठीक है। सो हम ऐसे निकाल सकते हैं इसका पोटेंशियल, ठीक है। अब यहाँ पे अगर टेस्ट चार्ज को यूनिटी लिया जाए या इसका मैग्नीट्यूड 1 रख दिया जाए, तो फिर पोटेंशियल जो होगा वो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगी अगर क्यू नॉट को 1 रख दिया जाए के क्यू बाय आर। सो हम क्या बोल सकते हैं कि potential energy when a test charge is moved against the electric field, and potential is when a unit test charge is moved against the electric field, ठीक है। सो ये यू कैसे निकाल सकते हैं, हमें पता होता है कि फोर्स कितनी होती है दो चार्जेस के बीच में, के क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर, और वर्क डन कितना होता है, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर। सो जब हम इसको यहाँ पे डी आर लगा देंगे, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो इक्वल टू वर्क डन विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर। सो एफ इज के क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर इंटू डी आर। सो व्हेन वी इंटीग्रेट दिस क्वांटिटी वी गेट एज u is equal to k q naught by r. So this is our potential energy and this is our potential, ठीक है। So I hope now you are clear with the difference between these two quantities. So if you like my video, so do like, share and subscribe with your friend as well, and you can also join my Telegram channel. I will upload the link there. So thank you so much. Thank you for watching it.